خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں خدا کے کلام میں سے بہت ہی گہرائی اور بہت ہی عمیق باتوں کو لے کر آیا ہوں۔ آج کا موضوع جی بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی تھوڑا سا آپ کو ایسے لگے گا کہ بہت ہی کرخت ہے، خاص طور پہ جو تھوڑے سے فنڈامنٹل قسم کے لوگ ہیں، جو تھوڑا سا ریجڈ قسم کی سوچ رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا آج کا موضوع جو ہے تھوڑا سا عجیب ہونے والا ہے۔ دو یسوع، یہ میرا عنوان ہے۔ اب آپ سوچیں گے obviously کہ یہ دو یسوع کہاں سے آگے بھائی؟ یسوع تو ایک ہے جس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے جی۔ یہ سوال دو یسوع میں نے نہیں کیا پہلی دفعہ، ایک بہت بڑے خدا کے مشہور ایک لکھاری گزرے ہیں جنہوں نے بہت ساری تحریرات لکھی ہیں، لبنان کے رہنے والے تھے، خلیل جبران۔ انہوں نے جی 1931 میں ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا جیزس دا سن آف مین۔ اس میں انہوں نے ایک بڑی زبردست کوٹیشن لکھی تھی جس نے میں نے جب اس کو پڑھا اس نے میری سوچ کو ہلا دیا۔ پھر ہم آگے اس پر بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں وہ کوٹیشن آپ کے سامنے پڑھ دوں۔ اس میں لکھا ہے جی once every 100 years Jesus of Nazareth meets Jesus of Christians in a garden of Lebanon and they talk long and each time Jesus of Nazareth goes away saying to Jesus of Christian, my friend, I fear we shall never agree۔ خلیل جبران جی اس کوٹیشن میں کہہ رہے ہیں کہ یسوع ناصری اور مسیحوں کا یسوع 100 سال کے بعد لبنان کی پہاڑیوں پر ملتے ہیں، اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، تو اس وقت وہ ایک دوسرے سے ہمیشہ یہی بات کہتے ہیں کہ افسوس ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ متفق نہ ہو پائیں گے۔ اس بات نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا کہ خلیل جبران 18ویں صدی میں ایسی بات کیوں کرتے ہیں، ایسی بات کی مطلب زحمت کیوں ان کو ہوئی کہ انہوں نے کیوں اتنی سخت بات لکھی۔ شاید آپ لوگوں کے نزدیک بھی یہ پہلی دفعہ ایک سوچ رکھنا چاہتا ہوں میں، کئیوں کے نزدیک یہ پہلی دفعہ سوچ ہوگی کہ کیا دو یسوع ہیں ہمارے پاس بھی؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے چرچز پہ غور کیجئے، اپنے چرچز میں جو خداوندین ہمیں سکھاتے ہیں۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہا جی، لیکن خاص کر ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو اس طرح کی تشریحات کرتے ہیں جس طرح کی آج تشریح میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور میں ایک دفعہ پھر ہاتھ جوڑ کے آپ سب سے معافی مانگتا ہوں اگر کسی کو میری کوئی بات بری لگی ہو، لیکن ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز یہ ویڈیو کو سن لیجئے گا۔ ناصرت کا یسوع کون تھا جی؟ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس بات کو سیکھنے کو ہیں کہ یہ دو یسوع کا کانسیپٹ کہاں سے آ گیا۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ پہلی دفعہ میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خلیل جبران مجھ سے پہلے کئی سال پہلے کہہ گزر چکے ہیں، اور کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہے۔ اور آج میں اپنے ویورز آپ کا دھیان اس طرف لگانا چاہتا ہوں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کو کس طرح ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کیا ہم اس یسوع کو مانتے ہیں جو ناصرت کی گلیوں میں گھومتے تھے، ناصرت کی گلیوں میں مٹی میں اپنے قدم گندے کرتے تھے، اپنے پیروں پر مٹی کی دھول ہوتی تھی، ایک جبہ پہنا ہوتا تھا انہوں نے؟ یا ہم اس یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہے ہیں، یا ہم اس یسوع مسیح کے پیچھے چلتے ہیں جو عالی شان کرسیوں پر اور عمارتوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے جی ناصرت کے یسوع کی تھوڑی سی تصویر رکھنا چاہتا ہوں۔ یسوع ناصری غریب گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، غریب تھے، کوئی شان و شوکت نہیں تھا، کوئی گاڑیاں نہیں تھی، کوئی بنگلے نہیں تھے، کوئی گھوڑے نہیں تھے، کوئی نوکر چاکر نہیں تھے، غریب تھے۔ وہ باغی تھے، ان کی سوچ باغی تھی، ان لوگوں کے خلاف بغاوت کرتے تھے جو غلط تشریحات کلام مقدس کی، پرانے عہد نامے کی جو یہودی ربی کرتے تھے، اور جو ان لوگوں پر بوجھ ڈالتے تھے، جو عام لوگ ہوتے تھے، ان کے خلاف بغاوت کرتے تھے۔ یسوع مسیح جی بدلاؤ لانے والے تھے، چینج لانے والے تھے، جہاں جاتے تھے وہاں پہ بدلاؤ آ جاتا تھا۔ وہ ایک بہت عظیم ربی تھے۔ انہوں نے تخت کی بجائے صلیب کو چنا، انہوں نے طاقتوروں کو چیلنج کیا جی، کمزوروں کو، حقیروں کو، گنہگاروں کو، شرابیوں کو، کنگالوں کو، معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو، کسبیوں کو گلے سے لگایا۔ ان کا پیغام تھا جی محبت، رحم، سچائی اور قربانی۔ دوسرے حصے پر چلتے ہیں۔ یہ تو تعارف تھا یسوع ناصری کا۔ اب میں آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے یسوع مسیح جو مسیحوں کے ہیں ان کا بھی تعارف کرواتا ہوں۔ مسیحوں کا یسوع جی عقیدوں میں بدھا ہوا ہے،
फिर से कहूँगा, मसीहों का यीशु, आज हमारे चर्चेज में जिस यीशु की तालीम दी जाती है वो अकायद में बंधा हुआ है। आज का यीशु निहायत अमीर लगता है जी। आप समझ सकते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आज का यीशु फिरकों में तकसीम है जी। आज का यीशु अकायद में कैद है जी। आज हमने नासरत के यीशु को अपने मजहब की तस्वीर बना दी है, यानी जो हम समझते हैं, जैसा हम चाहते हैं, हमने अपना यीशु वैसा बना दिया। एक यीशु वो है जी जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, और एक यीशु वो है जिसके बारे में चर्च हमें बताता है। आज का यीशु हमें सोने के ताज वाला मिलेगा जी, जिसके खूबसूरत शानदार कपड़े हैं। आज का यीशु हमें गिरजा घरों की दीवारों पर लटका हुआ मिलेगा जी। आज का यीशु ज्यादातर सलीब पर लटका हुआ दिखाया जाता है चर्चेस के अंदर। आज का यीशु हमने माबूद तो, आज के यीशु को जी हमने माबूद तो बना दिया है, मगर एक अजीम इंसान और उस्ताद के तौर पर हम भुला चुके हैं। आज का यीशु मैंने आपसे कहा कि उस वक्त का यीशु बदलाव लाता था। आज का यीशु कहाँ बदलाव ला रहा है? अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिएगा, अपने इलाका जात पर गौर कीजिए, अपनी कलीसियाओं में गौर कीजिए, अपने मोहल्लों में गौर कीजिए। आज का यीशु कहाँ बदलाव ला रहा है? अगर उसने अभी तक मेरे दिल में, हमारे दिल में, आपके दिल में बदलाव नहीं लाया, तो मुझे बताइए इस सवाल का जवाब बनता है या नहीं बनता। आज का यीशु मजहबी रसूमात में जकड़ा हुआ है जी। मजहबी तरह तरह की रसूमात हैं जिनमें जकड़ दिए हमने। अभी गुज़श्ता रोज़ हमने पाम संडे मनाया था। मैं फिर कहूँगा कि मैं किसी चर्च के खिलाफ नहीं हूँ, हर चर्च को पाम संडे मनाना चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डालियाँ लेकर नहीं, एक रस्म नहीं बनानी है। फिर हमने पाक जुमेरात मनाया जिसमें हमने पैर धोने की रस्म बनाई। तो सिर्फ पैर धोने तक नहीं रहना, वीडियोस नहीं बनवानी, बल्कि हकीकत में अगर हम अपने दिल से, अपने दिमाग से आजिज नहीं होंगे, इनकसार नहीं बनेंगे, अपने भाई से प्यार नहीं करेंगे, तो उसका मेरे अजीज़ों कोई फ़ायदा नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आज का मसीही, आज का यीशु, आज का जिस मसीह यीशु को आज चर्च ने पेश किया हुआ है, वो महदूद हो गया है, रसूमात में जकड़ा हुआ है। आज का यीशु सिर्फ चर्च तक महदूद हो गया है जी। आज का यीशु ना तो कमज़ोरों के पास बैठता है, ना उनके पास उठता है, बल्कि उनके साथ बैठने से नापाक हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। आज का यीशु जब हम बात करते हैं तो वी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट। हम खुदाम दीन जो हैं, हम यीशु मसीह को पेश करते हैं। तो आज का यीशु जिसको हम पेश कर रहे हैं, वो ना शराबियों के पास बैठता है, ना कंगालों के पास बैठता है, ना बेवाओं के पास बैठता है, ना कस्बियों के पास जाता है। क्योंकि यीशु मसीह को अगर आप नोट करें तो यीशु मसीह उन सब जगहों पर जाते थे, बल्कि उन पर ये इल्ज़ाम था कि वो शराबियों को, खाऊओं को और पीने वालों का यार है। क्या हम पर कभी ऐसे इल्ज़ाम लगे जो बाइबल के यीशु पर लगे थे? हम तो बड़े पाक साफ हैं। हम तो अपनी कुर्सी से नीचे आना पसंद नहीं करते, हम अपने चर्च से बाहर जाना पसंद नहीं करते, हम अपने अकायद से अगर हट के कोई बात करें तो हम उसको सुनना पसंद नहीं करते। तो मेरे अजीज़ों, इसीलिए शुरू में मैंने कहा था कि जिस यीशु को हम मानते हैं, क्या ये वही यीशु है जो बाइबल हमें बताती है? इसीलिए मैंने कहा था, इसीलिए खलील जिब्रान ने आज से 18वीं सदी में ये सोच रखी थी कि ये दोनों यीशु कभी भी एग्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि चर्च ने जिस यीशु की तस्वीर पेश की है वो अलग यीशु है, जिसकी तस्वीर बाइबल हमें दिखाती है वो अलग यीशु है। और मैंने दोनों का कंपैरिजन आपके सामने रखा है। आज यीशु का पैगाम उसके अकायद हैं, यानी आज जो चर्च में हम अपने अकीदे बना के बैठे हैं ना जी, हमने उन्हीं को अपना यीशु का पैगाम बना लिया। हमारा अकीदा अपना ही होता है, हर किसी चर्च का अपना एक अकीदा है, ठीक है। तो इसी तरह थोड़ा सा हम और आगे चलेंगे। जब खलील जिब्रान ये कहते हैं कि वो मिलते हैं मगर मुत्तफिक नहीं होते, तो उसका मतलब ये है कि ये दोनों का रवैया बिल्कुल एक दूसरे से फ़र्क है। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, नासरत का यीशु सवाल करता था, मसीहों का यीशु बस ईमान रखता है। नासरत का यीशु देता था, मसीहों का यीशु सिर्फ मांगता है। नासरत का यीशु धोखा दही को ललकारता है, मसीहों का यीशु खामोश होने को तरजीह देता है। नासरत का यीशु अमल की दावत देता है,
मसीहों का यीशु महज कलीसियाओं, इबादत गाहों में महदूद हो गया है। हम किसके पैरोकार हैं? अब नतीजा ये निकलता है, हम अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं कि हम किसके पैरोकार हैं। हम यीशु के मानने वाले हैं, उस यीशु के जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है, या उस यीशु के जो क्रिश्चियनिटी, मसीहत हमें सिखा रही है। मैं आपको फिर बताता चलूं कि मसीहत कोई मजहब नहीं था जी। यीशु मसीह ने कहीं पर भी बाइबल मुकद्दस में मसीहत को मजहब नहीं कहा, ना ही ये जब उतरा, ना ही ये जब तालीमात उतरी यीशु मसीह की, जो अनाजील में तालीमात है, बेसिकली ये कंटिन्यूएशन थी तौरेत की, साहिफ अंबिया की, ठीक है। तो ये कहीं पर भी मजहब नहीं था, बल्कि ये एक रिश्ता था। क्या हम उस यीशु नासरी से जो गलील की गलियों में, नासरत की गलियों में, यरूशलेम की गलियों में अपने नंगे पैरों के साथ सलीब उठाता था, चलता था, पहाड़ चढ़ जाता था, लोगों की दुख तकलीफ को दूर करता था पैदल चल चल के, क्या हम उस यीशु नासरी के फॉलोअर हैं, या हम उस यीशु नासरी के फॉलोअर हैं जो चर्च में, गिरजाघरों में ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठा हुआ है? सोचिएगा जरूर। वो यीशु जो बाइबल मुकद्दस के औराक में हमें नजर आता है, या वो यीशु जो हॉलों के मुजस्समों में हमें नजर आता है? जी, हम किस यीशु की पैरवी करते हैं? यीशु नासरी ने कभी मजहब नहीं बनाया, उन्होंने, मैंने फिर कहा, उन्होंने रिश्ता बनाया, रिश्ता कायम किया। तो आखिर में जी सवाल था, क्या नासरत के यीशु को हम मानते हैं, या हम मसीही दुनिया के यीशु को मानते हैं? क्या ये दोनों एक जैसे हैं? जवाब शायद आपके अकायद में है। आपने जो सीखा अपने चर्चे से, आपको जवाब मिलेगा। आप सोचिएगा जरूर। यीशु नासरी आज भी हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक देता है जी। गौर से सुनिएगा, यीशु मसीह आज भी हमारे दिल के दरवाजे पर, यीशु नासरी की बात कर रहा हूँ, यीशु नासरी आज भी हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ दस्तक दे रहा है, चर्च के दरवाजे पर नहीं। क्योंकि चर्च एक इमारत है, और इमारत कभी भी चर्च नहीं हो सकती। अगर आप यूनानी लफ्ज़ कलीसिया पर गौर करें, मैं हाथ जोड़कर सारे खुदाम दीन से एक दफ़ा फिर माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, लेकिन यकीन कीजिए मैंने अपनी तरफ से खुदा के कलाम में से सच्चाई को पेश किया। कलीसिया के वर्ड पर अगर आप गौर करें तो ये कोई इमारत नहीं थी, बल्कि ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट थी। हर एक फ़र्द बशर से ये मिलकर बनती है कलीसिया। तो यीशु नासरी, मसीहों का यीशु नहीं जी, सॉरी टू से, यीशु नासरी आज भी हमारे दिल के दरवाज़ों पर खड़े हैं और खटखटा रहे हैं। हम कब खोलते हैं, किस वक्त उनको जवाब देते हैं, या हम चर्चेज में जाकर उनके दरवाजे पर ढूंढ रहे हैं कि खुदा यीशु मसीह वहाँ पर है? बेशक वहाँ पर भी हैं, चर्च जाना चाहिए। मैं किसी चर्च के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एंड में फिर अपनी बात क्लियर कर दूँ, मैं किसी डिनोमिनेशन, किसी फ़िरके के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं आपकी नज़र जो है वो इस बड़ी ही ज़बरदस्त और बड़ी ही गहरी सच्चाई की तरफ लगाना चाहता हूँ कि क्या हम खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले हैं? सवाल फिर अपने आप से कीजिएगा, उस यीशु मसीह को जो चर्चिज़ में आलीशान कुर्सियों पर बैठा हुआ है, उन चर्चिज़ में जो यीशु को मानते हैं जो गुनहगारों के साथ उठना बैठना पसंद नहीं करता, या हम उस यीशु को मानते हैं जिस पर इल्ज़ाम ये लगा था कि वो गुनहगारों का दोस्त है, वो गुनहगारों का यार है? थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।